Hello students, today we discuss some more properties of statistical physics, and today we will derive the ideal gas law and relation between pressure and energy density. Then after expression for entropy in connection to N, V and E, where N is the number of particles, V is the volume and E is the total energy. After that we will discuss entropy of mixing and Gibbs paradox. So let us start. Here we have, as you can see, first we can write the total number of microstates which depends on the volume. As I have already sent you the PDF of this lecture in advance, so I think it will be clear to you when you first read this and then after listen this lecture. So I will skip all the less important details. Here you can already easily derive these step by step details and equations, and you can get that from the statistical approach. You get this PV equal to nRT, which is the ideal gas law you have studied in thermodynamics. Then more about microstates, the expression, how we can get this. We can write the expression for total energy or the energy eigenvalues, which is equation 4 here, for a free particle in a one dimensional or three dimensional box of side L. So the volume will be L to the power 3, L cube. So this is h square over 8 m L square, nx square plus ny square plus nz square. ये थ्री डायमेंशनल बॉक्स है, सो वी हैव एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस, and nx and y and z are the integers. So this, I think you have studied this relation in quantum mechanics. So this epsilon, ये जो number होगा, this will represent the number of microstates. As you can see, if we describe it this in terms of degree of freedom, then we can see that this number epsilon r, where r is equal to 1 to 3n, is equal to E, and this will represent the number of microstates as it depends on n and E. So now we can see that it also depends on V. V is the volume. So how we can see this? If you see, then we can directly change this expression, equation 4. We can change the L into V. How? As you know, V is equal to L cube. So we get this equation 5 or equation 6 in general, where we have got the expression for number of microstates in terms of N, V and E. So equation 6 will represent the 5 or 6, both represents the number of microstates. So from here we can use the relation of pressure in terms of partial derivatives of E with respect to V at constant N and S. So after some small calculations, we get the P is equal to 2 upon 3 E upon V, where P is the pressure and E upon V is the energy density. Also we get a relation P into V to the power 5 by 3 is equal to constant, and capital E energy is equal to 3 upon 2 nkt. This all you know that this is for ideal classical gas. And also, okay, if you see equation 6 here, equation 6, where the summation r equal to 1 to 3 n r square is equal to capital E star. So this represents the
number of microstates. We can use this relation and see that अगर हम एन आर को देखें, एन आर स्क्वायर अगर ई है तो एन आर विल बी अंडर रूट ई, और ये एक स्फेयर का इक्वेशन है, तो हम ये बता सकते हैं कि स्फेयर के जो रेडियस होगा वो अंडर रूट ई का अगर रेडियस खींच दें, रेडियस का स्फेयर खींच दें, देन द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल साइन लैटिस पॉइंट्स लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ 3n डायमेंशनल स्फेयर। और यहाँ से हमको ये निकलता है, ये रिलेशन आता है एस का, एस जो है क्या है, एंट्रोपी। ये आप देख लीजिएगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है ये रिलेशन को निकालना, बट आई एम स्किपिंग दिस एंड आई विल डायरेक्टली यूज़ दिस रिलेशन इन फर्दर अदर डेरिवेशंस। तो ये इक्वेशन 12 है विच वी विल यूज़, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा ठीक से। एंड यू कैन सी एस इज़ द फंक्शन ऑफ एन वी एंड ई, इन राइट हैंड साइड आप देखेंगे के इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड ऑल अदर थिंग्स आर you know that small h is Planck constant. Okay, so after that we discuss a very important thing which will make your concepts more clear, entropy of mixing and Gibbs paradox. So here entropy of mixing, first you know that if you mix two gases, दो गैस हैं उनको मिक्स कर दें, देन एक होगा मिक्सिंग के पहले की एंट्रोपी, वो क्या होगा, टोटल सम ऑफ गैस 1 एंड गैस 2, दोनों की एंट्रोपी को सम कर दिया, ऐड कर दिया। एंड एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, मिक्सिंग के बाद की क्या होगी, वो भी उसको दोनों को ऐड कर देंगे, फाइनल जो टोटल एंट्रोपी है। तो यू सी दैट दीज आर नॉट इक्वल, सो द चेंज इन द एंट्रोपी वेदर इट विल बी डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, बट आपको पता है डिक्रीजिंग होती नहीं है, एंट्रोपी इज आइदर चेंज इन एंट्रोपी इज आइदर ज़ीरो और इंक्रीजिंग। तो आप क्या बोलेंगे, तो डेल्टा एस इज़ आइदर ज़ीरो और पॉजिटिव। तो जो चेंज आएगा या इंक्रीजिंग होगा अगर एंट्रोपी में, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी। ओके, एंड व्हाट इज़ गिब्स पैराडॉक्स, ये भी हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। इट विल बी मोर क्लियर टू यू ग्रेजुअली, जैसे जैसे हम डिस्कस करते जाएंगे। अब देखेंगे क्या होता है, हम दो केस लेते हैं यहाँ पे। ओके, लेट अस सी केस 1 एंड केस 2। इसमें एक केस में हमने क्या लिया, दो गैस ले ली 1 एंड 2, मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। सो गैस 1 और गैस 2 को मिक्स कर देंगे विद दी प्रॉपर्टीज N1 V1 एंड T, ये फर्स्ट गैस का है, और T हमने टेम्परेचर जो इनिशियल है वी हैव एज्यूम्ड दैट इट इज़ इक्वल फॉर बोथ द गैसेस। और सेकंड गैस है N2 V2 एंड T, इन दोनों को मिक्स कर लिया, ये डिफरेंट हैं, और दिस प्रोसेस, दिस मिक्सिंग इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो डेल्टा एस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। इरिवर्सिबल का थोड़ा सा मतलब को यहाँ पे एलेबोरेट करते हैं। ये जो प्रोसेस है दोनों मिक्स हो गई, वंस बोथ द गैसेज आर मिक्सड, सो irreversible means now there is no way you can again get the both the gases separated. दोनों गैसेज जो होंगी वो सेपरेट नहीं हो पाएंगी, उसको बाद में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप फिर भी दोनों के बीच में एक सेपरेटर लगा भी दें जैसा पहले था, तो यू कैन नॉट गेट दी सेम सिचुएशन बैक। और अगर सो दिस इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल। और केस 2 क्या ले सकते हैं, दैट सेम गैसेस, सो नाउ वी हैव 2 सैम्पल्स ऑफ सेम गैसेस इन द बोथ द चैम्बर्स, एक N1 V1 T है, N2 V2 T कैरेक्टराइज्ड बाय दीज टर्म्स, बट नाउ द सिचुएशन इज डिफरेंट इन द सेंस दैट इवन आफ्टर मिक्सिंग ऑफ दीज गैसेस वी कैन अगेन गेट दीज 2 सैम्पल्स ऑफ सेम गैसेज सेपरेटेड बैक। कैसे हो सकता है कि आप ये जो सेपरेटर था आपका, इसको, इस वॉल को फिर से आप लगा देंगे दोनों में, जिससे कि आप वॉल्यूम V1 और V2 सेम कंडीशन ले आएंगे। क्यों, कैसे ला सकते हैं और पहले क्यों नहीं ला सकते थे?
पहले इसलिए नहीं ला सकते थे क्योंकि गैस 1 एंड गैस 2 आर डिफरेंट। सो आपके पास वॉल के एक वॉल जो सेपरेटर है उसको मिक्सिंग के बाद लगाने के बाद भी आपके पास दोनों साइड में कुछ ना कुछ मिक्सचर रहेगा, दोनों क्लियरली 1 और 2 को आप अलग अलग नहीं कर पाओगे। बट यहाँ पे क्या होगा, आप सेपरेटर को इस तरह लगाएंगे सेम इनिशियल कंडीशन के हिसाब से, तो आप कह सकते हैं कि नाउ वी हैव गॉट द इनिशियल कंडीशंस लाइक वन एंड दोनों सैंपल्स को अलग अलग कर दिया। कैसे कर दिया, क्योंकि आप यहाँ पे ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये किसी भी तरह से आप नहीं निकाल सकते कि कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ चला गया है, बिकॉज मॉलिक्यूल इफ़ यू कंसिडर अ मॉलिक्यूल, कोई एक मॉलिक्यूल ले लो सैंपल्स में सभी सेम है, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल गैस का मिक्सिंग के बाद अगर फर्स्ट चैम्बर में आ गया, फर्स्ट चैम्बर में था और दूसरे में चला गया मिक्सिंग के बाद, तो भी वो सेम ही रहेगा, कंडीशन चेंज नहीं रहेंगी। पहला एक मॉलिक्यूल यहाँ से वहाँ चला गया और वहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, फर्स्ट चैम्बर से दूसरे में और दूसरे से फर्स्ट चैम्बर में, तब भी कंडीशंस विल बी सेम। तो आप कह सकते हैं क्योंकि दोनों सैंपल्स तो सेम ही रहेंगे तब भी, इसलिए बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन वी कैन से दैट दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड डेल्टा एस मस्ट बी इक्वल टू 0। सो दोनों जगह पर ये कंडीशन चेंज हो गई कि चेंज इन एंट्रोपी इज़ डिफरेंट इन बोथ द केसेस। नाउ वी विल टेक वन बाय वन दीज केसेस एंड वी विल सी हाउ द पैराडॉक्स अपीयर्स। सो केस 1 जिसमें हम दो अलग अलग गैसेस लेते हैं, उनकी एंट्रोपीज़ को अगर हम लिखते हैं तो एंट्रोपीज़ ये आ जाएंगी जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था। इक्वेशन कौन सा था वो, दिस इक्वेशन 12। इस इक्वेशन 12 से हम लिखते हैं S1 S2, टोटल एंट्रोपी S1 प्लस S2 एंड टोटल एंट्रोपी आफ्टर मिक्सिंग भी आप ST कह सकते हैं उसको, जो कि मिक्सिंग के बाद की एंट्रोपी होगी, जहाँ पे आपका चेंज क्या हो जाएगा, V1 और V2 आपका V हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम V मिक्स हो चुके हैं दोनों। सो ये S1 डैश एंड S2 डैश लिख सकते हैं एंड नेट इंक्रीज विच इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग विल बी डेल्टा एस इक्वल टू ST माइनस S1 प्लस S2। इसको अगर आप करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई, देन वी विल गेट इक्वेशन 17 डेल्टा एस इक्वल टू K देन ब्रैकेट N1 log V1 plus V2 by V1 plus N2 log V1 plus V2 by V2. And now again if we say that initial particle density is small n which is equal to capital N over capital V of the two gases and the mixture are also the same, मतलब आप कह रहे हैं कि N1 upon V1 इक्वल टू N2 upon V2 इक्वल टू N1 plus N2 upon V1 plus V2। अगर ऐसा होता then we will get equation 18 delta S will be K N1 log N1 plus N2 by N1 plus N2 log N1 plus N2 by N2। मतलब आप इसको पूरा का पूरा नंबर ये N के टर्म्स में लिख दिया, N1 और N2 के टर्म्स में। अब आप इक्वेशन दोनों ही इक्वेशन से इट इज़ क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 17 एंड 18 दैट द चेंज इन एंट्रोपी इज़ ग्रेटर देन 0, सो विच इज़ राइट, विच इज़ इन एग्रीमेंट, जो कि हमने माना था, दैट इज़ ओके, बस पैराडॉक्स इज़ नॉट देयर। अब पैराडॉक्स कहाँ आता है, सेकेंड केस में, व्हेन वी टेक टू सैम्पल्स ऑफ सेम गैसेस, नाउ M1 इज इक्वल टू M2, वी कैन से दिस इज इक्वल टू M। फिर से अगर आप सेम कैलकुलेशन करते हैं देन यू विल गेट दिस इक्वेशन 20 इज आफ्टर मिक्सिंग, एंड अगर आप देखते हैं तो चेंज इन एंट्रोपी इज अगेन कमिंग एज पॉजिटिव, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। सो बट क्या होता अभी हमने इसको कंसिडर किया था, इफ़ वी टेक टू सैम्पल्स ऑफ सेम गैसेज देन दिस इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड डेल्टा एस शुड बी 0। बट यहाँ एक्सप्रेशन से आपके पास डेल्टा एस इज़ नॉट कमिंग 0, सो दिस इज़ अ पैराडॉक्स एंड दिस इज़ कॉल्ड गिब्स पैराडॉक्स। तो गिब्स सजेस्टेड सम सॉल्यूशन टू दिस। गिब्स ने क्या सजेस्ट किया, टू चेंज द एक्सप्रेशन ऑफ एंट्रोपी, जो एंट्रोपी का इक्वेशन 12 था उसमें गिब्स सजेस्टेड दैट देयर शुड बी सम करेक्शन एंड ही सजेस्टेड दैट दिस एक्सप्रेशन ऑफ एंट्रोपी मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय एन अमाउंट k ln n फैक्टोरियल, ठीक है, k log n फैक्टोरियल कैपिटल N। अगर इस फैक्टर से आप इसको
इस टर्म को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो करेक्टेड एंट्रोपी का टर्म आएगा उसको सही माना जाएगा। और ये हम चेक भी कर लेंगे कि वेदर वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट्स मॉडिफाइड और नॉट। तो आप इक्वेशन 12 में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे k ln n फैक्टोरियल, तो आपके पास क्या आता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है जो कि विच इज़ यूज्ड समटाइम्स फॉर कैलकुलेशंस एंड दिस इज़ यूजफुल। log n फैक्टोरियल is equal to n log n minus n. This is called Stirling formula, and this is mostly useful when capital N is very large. जब n बहुत ज़्यादा होगा तब आप इसको यूज कर सकते हैं। दैट ये भी एक अप्रॉक्सीमेशन है। log n factorial can be written as n log n minus n. So using this relation आपके पास इक्वेशन 21 आ जाता है, एंड ऑल्सो आप इक्वेशन थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेंगे, 22 भी कर सकते हैं। अब ये फाइनल आपका एक्सप्रेशन है, इक्वेशन 21 एंड 22। अब आप देखते हैं कि क्या जो हमने इसको करेक्ट किया है, मॉडिफाई किया है, वेदर इट इज़ गिविंग अस द रिजल्ट्स फॉर सेकेंड केस 2 जिसमें हमने सेम गैसेस के सैंपल लिए थे, क्या वहाँ पे डेल्टा एस 0 आता है? ओके, लेट अस चेक इट। तो आप देखेंगे यहाँ पे चेंज क्या होगा, आपके एंट्रोपी के टर्म चेंज हुए हैं तो सब कुछ चेंज होगा जैसे हमने अभी किया था। सो ये n1 v1 n1 by v1 n2 by v2 and n1 plus n2 by v1 plus v2, दिस इज़ पार्टिकल डेंसिटीज विच इज़ इक्वल। सो पार्टिकल डेंसिटीज इक्वल मानते हुए चलेंगे तो आप इक्वेशन 23 आपका डेल्टा एस आएगा, और आप देखेंगे कि डेल्टा एस इज़ कमिंग एज 0। ठीक हो गया? दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा और इजीली आप देखेंगे कि दैट डेल्टा इज कमिंग एज 0। सो दिस वे गिव्स रिजॉल्व दिस पैराडॉक्स, जो कि आप शायद समझ गए होंगे कि अगर हम 2 गैस सैंपल लेते हैं अलग अलग, तब क्या सिचुएशन होती है। दोनों के मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं, मिक्स करने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते, उनको वापस अलग अलग नहीं कर सकते। बट अगर आप सेम गैस के 2 सैंपल लेते हैं जिनके मॉलिक्यूल सेम है, ठीक है, जिनका कॉन्फ़िगरेशन सेम है, कंपोजिशन सेम है, तो V1 और V2 बस अलग अलग है, वॉल्यूम अलग अलग लेते हैं आप, बट आप उसको मिक्सिंग के बाद भी अलग अलग कर सकते हैं, बिकॉज आप चाहे आपका एक मॉलिक्यूल इधर से उधर पहुंच गया फिर भी सिचुएशन सेम ही रहेगी। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज योर मॉलिक्यूल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, डिस्टिंग्विश नहीं किए जा सकते, इसलिए ये सिचुएशन आई। जहाँ पर आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वहाँ पर ये सिचुएशन कुछ और होगी। अगर आप कर सकते डिस्टिंग्विश तो तब भी वो इरिवर्सिबल ही होती। ओके, अब मोर ओवर वी कैन से व्हाट इज़ द चेंज इन ओमेगा माइक्रोस्टेट्स। अगर s इक्वल टू k log ओमेगा है तो s में अगर चेंज कर दिया आपने एक्सप्रेशन को, s इज़ रिड्यूस्ड बाई k log n फैक्टोरियल, तो कितना चेंज आएगा ओमेगा में, लेट अस सी। आप इसको माइनस कर देंगे, k log ओमेगा माइनस k log n फैक्टोरियल, तो आप लिख सकते हैं k log ओमेगा अपॉन n फैक्टोरियल। सो यू कैन से दैट नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट विल बी रिड्यूस्ड बाई अ फैक्टर ऑफ n फैक्टोरियल। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एंट्रोपी में k log n फैक्टोरियल का अमाउंट का रिडक्शन है। अमाउंट रिडक्शन मीन्स आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ आप फैक्टर बोलेंगे। जब भी आप फैक्टर बोलते हैं तो इसका मतलब है आप डिवाइड करते हैं उस चीज़ से, तो आप बोलेंगे विल बी रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ माइक्रोस्टेट्स में n फैक्टोरियल। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड वी विल सी मोर statistical parameters later. I think इसके बाद अब ensembles है, हम आपको डिस्कस करेंगे ensembles क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।